Hi, good morning everyone. Today I will do chapter 6 extra practice question. Your last exercise 6.3 you have to just write in standard form and your exponential form. If any number you want to write in exponential form, you make the factors by factorization method. Either you can divide with the prime factors or you can divide with any common table of this. And further you have to convert into the standard form and expanded form of exponential form. Okay, now your third question is that 279,936 people visited a fair. Express the number in exponential form. ये जो आपको नंबर दिया हुआ 279,936, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उसके लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे. चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, दैट इज़ द सेम थिंग. अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी करोगे तब भी 2 आपका 7 टाइम्स आ जाएगा, 3 आपका 7 टाइम्स आएगा. तो इंस्टेड ऑफ 2 and 3 I divide with the 6. So when I divide 279,936 with 6, that gives me 46656. Again divide by 6 gives me 7776. Again divide by 6, 1296. Again 6 2 1 16, 216. And again divide by 6 give me 36, and 6 6 are 36, 6 1 are 6. So ultimately I found that when I multiply 6 7 times I got 279,936. So instead of writing multiple times of 6, I just write 6 raised to power 7. There are, now your fifth question, there are 2 raised to power 10 visitors in a monument, out of which 3 raised to power 5 are foreigners. How many people are from India? You have to find if among 210 people 3 raised to power 5 people are foreigners. 3 raised to power 5 people are foreigners. Then how many people are from India? So you have to find how many people that is a part of 2 raised to power 10 is from India. For that you have to subtract 3 raised to power 5 from 2 raised to power 10. When you multiply 2 raised to power 10, that gives you 1024, and 3 raised to power 5 gives you 243. After subtraction, that is 781. That means among this 1024, 243 were foreigners, and from India means Indians, that is 781. Next is question number 6. Now you have to simplify the terms. 2 by 3 raised to power 4 into 1296. So first you open 2 4 times and 3 4 times. One by one you cancel the term. 3 ones are 3, gives you 1296 divided by 3 gives you 432. Again divide by 3 gives you 144, and again divide by 3 gives you 48, and last fourth 3 divided by 48 divided by 3 gives you 16. Then 2 into 2 into 2 into 2. When 2 multiply 4 times give you 16, and 16 into 16 gives you 256. Now next is minus 6 by 5 raised to power 6 into 25 raised to power 5. Here if any negative base is there, power is even, so that even power consider as that negative term becomes positive. I told you before that when any negative base is there, if power is even, that negative merge up to positive. But if there is a odd power, then answer will be in negative form. So I can make this negative sign positive because power is 6, because when negative sign multiply by 6 times, that gives me positive. Now 6 raised to power 6, 5 raised to power 6, 25 is written as 5 square, and outside is 5 is there. Now 2 into 5 give me 10, 5 raised to power 6, 6 raised to power 6 keep as it is, and here in the numerator according to exponent law, if base has 2 powers, one is outside the bracket, one is inside the bracket, you have to multiply the powers. And if base is same, one in numerator, one is denominator, you subtract the denominator base power from the numerator base power, and one write the base once.
अगर आपके पास एक बेस है, उसकी एक पावर न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर वाले बेस की पावर आपने न्यूमरेटर बेस की पावर से आपने सब्ट्रैक्ट करनी है और बेस को एक ही बार लिखना है। ये आपका एक्सपोनेंट लॉ है कि अगर आपका बेस सेम हो तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई देयर इज अ डिवाइड साइन, यू विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स. So 10 minus 6 give me 4. When multiply 6 times give me 4, 6 6 5 6 and 5 4 times 625. Ultimately that gives you 2916 4 times 0. That is your required answer. Next is C part. 3 by 4 raised to power 5 into 2 by 9 raised to power 9. So first you open the powers, 3 raised to power 5, 4 raised to power 5, 2 raised to power 9 and 9 raised to power 9. Now you convert 4 and 9 into 3 and 2 form. 2 square gives me 4 and 9 is converted to 3 square. Keep as it is. जो उन बाहर पावर थी वो आपने एज इट इज़ अभी रहने देनी है. अब इन पावर को एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 इंटू 5 10 आ गया, 2 इंटू 9 आ गया आपके पास 18. 3 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 9. नाउ सेम base in numerator also and same base in denominator also. So what you do, same base, because if you think that if you move that like upward, so that will be like numerator base power is lesser than the denominator base power, so you can directly subtract from the downward. But if you don't want to go with the downward, if you subtract from the numerator, so that will gives you negative power, like 3 raised to power 5 minus 18, like 3 raised to power 5 minus 18 into 2 raised to power 9 minus 10. So what happened? That gives you minus 1 and that gives you minus 13. So we never solve the negative power, so negative power can directly write as to make it positive, we just reciprocal the base 1 by 2 raised to power 1 into 3 raised to power 13. Instead of writing above, if we write at the downward, 1 by 2 raised to power 10 minus 9 into 3 raised to power 18 minus 5, that is the same thing. अल्टीमेटली पर्पस ये एक्सपोनेंट लॉ का कि जहाँ पे बेस की पावर हायर है, अगर दूसरे बेस की पावर उधर शिफ्ट करनी है तो जहाँ पर वो शिफ्ट करेगी, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, तो जहाँ पे वो शिफ्ट होके जाएगी वहाँ पे जो अवेलेबल ऑलरेडी बेस है उस पावर से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 10 माइनस 9 आएगा, बट अगर मैं इसको ऊपर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 9 माइनस 10 आएगा. इसी तरह से अगर 5 को मैं नीचे सब्ट्रैक्ट जाके करूँगी क्योंकि बेस सेम है तो 18 माइनस 5 डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, बट अगर मैं ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 5 माइनस 18, तो उसके अकॉर्डिंग टू नेगेटिव पावर आएगी. तो नेगेटिव पावर अल्टीमेटली आपकी पॉजिटिव हो जाएगी जब हम उसका बेस चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में कर देंगे. स्पेस क्राफ्ट एक्स ट्रेवल 5.36 इंटू 10⁻³ किलोमीटर. एक स्पेस क्राफ्ट एक्स है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5.36 इंटू 10⁻³ जबकि दूसरा y ट्रेवल कर रहा है 6.4 इंटू 10⁻29. जब भी आपने एक साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपको नंबर लिखा होता है उसको अपने कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले आप 10 की पावर है उसको कंपेयर करोगे. फर्स्ट यू विल कंपेयर द पावर ऑफ 10. ओके, सो यू विल चेक विच 10 पावर हैज़ मोर. Okay, so if I check that here 10 power is 33 and here 10 power is 29, if you see that 10⁻³ is greater than 10⁻29. जब भी आपने एक डेसिमल नंबर को कंपेयर करना, सबसे पहले आप 10⁻⁴ को कंपेयर करोगे. अगर 10 की पावर ज़्यादा है तो वही नंबर ग्रेटर होगा. अगर 10 की पावर सेम है तब आप डेसिमल नंबर के कंपैरिजन में जाओगे. अब जैसे यहाँ पे डायरेक्टली शो हो रहा है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 29 है, तो 33 29 से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स ये जो ऊपर वाला नंबर है 5.36 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, that is greater than 6.48 into 10⁻29 kilometer. Ultimately what happened, spacecraft X travel more distance because that distance is more, because multiple of 10 is more. Next, simplify 8th question A part. minus 2 by 5 raised to power 15 minus 5 by 2 raised to power 8. If you see carefully, यहाँ पे जो बेस है
ये वाला बेस इसका रेसिप्रोकल है। ओके, तो अगर मैं ये बेस चेंज करूँगी, बेस को रिवर्स कर दूंगी, तो ये मेरी पावर किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इफ यू रिवर्स द बेस then power changes positive to negative. Okay, so if I reciprocal this one, because that means 5 is downward. Okay, if you reverse the base then power will be negative. नेगेटिव पावर का मतलब है कि मैंने अगर इसको उल्टा कर दिया, न्यूमरेटर नॉमिनेटर को चेंज कर दिया, अगर मेरा बेस रिवर्स होगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया हो जो आपका पावर है नेगेटिव में है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको बोला था हम बेस का रेसिप्रोकल लिख देंगे तो मेरी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बट अगर मेरी पावर पॉजिटिव है पर मुझे बेस का रेसिप्रोकल चाहिए तो मेरी पावर नेगेटिव हो जाएगी अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करूँगी। अगर ये आपस में इंटरचेंज होंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, अदरवाइज क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसको जब मैंने इंटरचेंज किया तो ये आ गया -2/5, क्योंकि यहाँ पे जो बेस था ये इसका रेसिप्रोकल था। तो यहाँ पे बेस को इसी का रेसिप्रोकल लिखने के लिए आई हैव टू मेक द पावर नेगेटिव, दैट इज -8। पॉजिटिव 8 चेंजेस टू -8 बिकॉज आई write the reciprocal of this number or interchange numerator denominator with each other. Now base is same, power is added, so that will be considered as -2/5 15 plus -8, और जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 15 - 8 give me 7, -2/5 raised to power 7 is my answer. Now here -8/3 raised to power 9 divide by 8/3 raised to power 4. अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम नहीं है, ओनली साइन का डिफरेंस है। तो अगर पावर इवन है तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन भी अंदर लगा दूँ सेम बेस बनाने के लिए, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन है। तो इवन पावर में चाहे आप अंदर नेगेटिव लिखो चाहे ना लिखो, डजेंट मैटर। सो टू मेक अ सेम बेस आई विल राइट -8/3 बिकॉज पावर इज इवन, आई कैन राइट -8/3. So now if division sign is there, base is same, we will subtract the power. 9 - 4 give me 5, -8/3 raised to power 5 is my required answer. Now 8th question C part, 9 square into 2/3 square divide by 6 cube. अब इस 9 को पहले 3 में कन्वर्ट करेंगे। देखो पावर 2 है दोनों की, अगर बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो एक्सपोनेंट लॉ में क्या करते हैं, पहले दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये जो पावर है इसको कॉमन लिख लेते हैं। 9 into 2/3 and common power is 2 divide by 6 3. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6 square. Now after calculation it give me 6 square divide by 6 3. और जब मैंने डिवाइड साइन हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर। 6 2 - 3, 6 raised to power -1, 2 - 3 give me 6 raised to power -1, and negative power when changes to positive it will also make the reciprocal of the base. अगर आपको नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चेंज करनी है तो आपको बेस का भी रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो इस बेस का जब मैंने रेसिप्रोकल लिखा तो मेरी ऑटोमेटिकली जो -1 की पावर है वो पॉजिटिव में चेंज होगी। अब है आपका 9th क्वेश्चन ए पार्ट। 9th क्वेश्चन ए पार्ट है 5 2 स्क्वायर इंटू 2 raised to power 3 स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में था 10 raised to power 5। सो पहले तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 2 raised to power 6 और 10 को ओपन किया 2 into 5 फैक्टर्स फॉर्म में raised to power 5। अगर बेस डिफरेंट हो पावर कॉमन हो तो वो पावर दोनों की पावर मानी जाएगी जो अंदर दोनों बेसेस है। तो इसको मैंने सेपरेट किया, 5 raised to power 5 2 raised to power 5। तो 5 जब ऊपर गया 4 - 5 and 2 6 - 5 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ, 5 raised to power -1 and 2 raised to power 1। और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे 5 का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। 1/5 पॉजिटिव पावर हो जाएगी, दैट गिव्स मी 2/5 raised to power 1। Actually there was something reading mistake in the question, so first I read that instead of 2 as 3, but suppose if instead of 2 there is a 3, so what will happen, 5 raised to power 6, 2 raised to power 6 and 10 raised to power 5. Now base are different, power is
same. So we write the common power 5 into 2 raised to power 6. That gives me 10 raised to power 6. So I can directly subtract 5 from 6. That gives me 10 raised to power 1 is the required answer. Next is your B part. If your x is to power 13, y 14, xy 5 and xyz 12, xyz is to power 4 into x 10. First you will separate all the powers like x, y, z. Okay, according to your exponent law, if is the multiplication is there, that power separately सबकी बेस की पावर जाएगी. x रेस्ट टू पावर 5, y रेस्ट टू पावर 5, x रेस्ट टू पावर 12, y 12, z 12. फिर आपने सारी पावर इक्वेट कर देनी है, न्यूमरेटर की अलग डिनोमिनेटर की अलग, क्योंकि अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाएगी. यहाँ पे x रेस्ट टू पावर आ गया आपके पास 30, नीचे x 14, ऊपर y 31, नीचे y 4 एंड z 12 माइनस 4, बिकॉज ओनली सिंगल z था तो 4 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, वो z 8 आ गया. और ये 4 जब 31 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो गिव मी 27, और ये जो 14 30 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 16. दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट सी पार्ट में भी ऐसे ही करना है. 5 और 3 की सेपरेट पावर दी हैं, आपने इक्वेट कर लेनी है. पहले न्यूमरेटर की 5 2 + 9 11 आ गया, नीचे की आ गई 8, 3 की 10 और नीचे की 3 रेज़ टू पावर 9. अब 8 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 11, 9 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, सो दैट गिव मी 5 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1. सो 5 रेज़ टू पावर 3 गिव्स मी 125 इंटू 3, दिस इज 375. बट अगर आपके पास लिखा हो -2 रेज़ टू पावर 3, 2 and 5, you multiply all the powers according to exponent laws, that give me 30. अब -2 को 30 टाइम्स सब्ट्रैक्ट नहीं करना, you will leave as it is your answer, -2 रेज़ टू पावर 30. Now your 11th question is, a student wrote the number 2568000 in a scientific notation. एक स्टूडेंट ने क्या लिखा, इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखा. जो साइंटिफिक फॉर्म क्या होती है कि एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड से तो जितने भी डिजिट्स हैं ओके उसको डेसिमल के बाद आपने प्लेस करना है. डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10 फॉर्म में होना चाहिए. ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म है, और साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म है. यहाँ पे आपने के की वैल्यू निकालनी है कि के की वैल्यू क्या थी. पहले तो आप इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा कि 0 5 zeros है, तो पहले 2 5 6 8 को के साथ 5 0 सेपरेट कर दी, 10 रेज़ टू पावर 5 आ गया. अब यहाँ पे मेरे पास 4 डिजिट है. 4 डिजिट का मतलब है कि मेरे डेसिमल के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए. मेरे डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने चाहिए और डेसिमल से पहले एक डिजिट ही होना चाहिए. तो उसके लिए मैंने देखा कि अगर मुझे 3 डिजिट डेसिमल के बाद रखने हैं तो आई विल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ 1000, 1 with 3 0. जितने डिजिट आपको डेसिमल के बाद प्लेस करने होते उतनी ही 1 के साथ 0 लगा के आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है. तो ये जब आपने डिवाइड किया, अगर किसी नंबर को मल्टीपल ऑफ 10 के साथ डिवाइड करते हो तो जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उतने ही राइट साइड से आपने डेसिमल काउंट करके डेसिमल प्लेस करना है. तो 2 आपके पास क्या आ गया 2.568, और यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 3 था. 3 + 5 गिव्स यू 8, दैट इज़ 10 रेज़ टू पावर 8. योर रिक्वायर्ड आंसर इज़ 2.568 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8. अब इसी को आपने ये जो आपका मिसिंग थी के की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करोगे. सारे नंबर तो सेम है. अब 10 रेज़ टू पावर 8 को 10 रेज़ टू पावर के के साथ कंपेयर करोगे तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8. वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका राहुल रोट अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. अब एक ये वाला नंबर आपको दिया था एक साइंटिफिक फॉर्म में. ओके उसने ये नंबर एक साइंटिफिक फॉर्म में लिखा, बाद में उसने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मीन साइंटिफिक फॉर्म से हटा के डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो उसने ये नंबर बनाया 9542635369.800. अब आपको इसमें ये चेक करना है कि उसने जो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया वो ठीक था या नहीं. पहले तो आप इसी को ही लोगे, इसका खुद से डेसिमल नंबर कन्वर्ट करोगे. तो 10 को 8 टाइम्स, 10 रेज़ टू पावर 8 का मतलब 1 के साथ 8 0 ओपन की, यहाँ से डेसिमल हटा तो डेसिमल के बाद देख लेने कितने डिजिट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 डिजिट है तो 1 के साथ 10 ज़ीरोज़ आ जाएंगी. इसमें 8 0 तो इसके साथ कैंसिल होगी, तो कितनी बची 2 ज़ीरोज़. तो आपने राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल प्लेस कर देना, तो ये आपका एग्जैक्ट डेसिमल नंबर आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राहुल ने डेसिमल नंबर बनाया था वो रॉन्ग था. एग्जैक्ट डेसिमल नंबर क्या था ये. अब है आपको 13 क्वेश्चन में कंपेयर करना है.
कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। सबसे पहले जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयरिंग की फॉर्म आती है तो हम 10 की हायर पावर को चेक करते हैं, बट अगर यहाँ पे देखो 10 की पावर सेम है, यहाँ भी 10 की पावर 45 है, 10 की पावर 45 है, अगर 10 की पावर सेम हुई तो उसके बाद हम डेसिमल नंबर के कंपैरिजन में जाते हैं। तो डेसिमल नंबर 9.68 इज़ ग्रेटर देन 4.36, सो वी कैन डायरेक्टली राइट 9.68 इंटू 10⁻45 इज़ ग्रेटर देन 4.36 इंटू 10⁻45। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट है 9.85 इंटू 10⁻15, 8.76 इंटू 10⁻18। जब इस तरह की साइंटिफिक फॉर्म आती है, जब 10 की पावर्स डिफरेंट होती है, तो आपने डेसिमल नंबर नहीं चेक करना, सबसे पहले 10 की पावर चेक करनी है। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर 18 ग्रेटर है, 10 की पावर 15 इज़ लोअर, तो 10⁻18 इज़ ग्रेटर दैन 10⁻15, दैट्स वाई this number 8.76 into 10⁻18 is greater than 9.85 into 10⁻15। अब आपके पास 14 क्वेश्चन में नंबर है, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंशन एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपेंशन का मतलब है कि 6th कौन सी पोजीशन पे है, 6 के बाद 6 से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो जितने डिजिट उस डिजिट से पहले हैं आपने उतना ही 10⁻, अप्लाई करके मेंशन कर देना है। अब 6 के बाद 6 से पहले कितने हैं, राइट साइड से काउंट करोगे तो 6 से पहले 5 डिजिट्स हैं, तो 6 10⁻5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहो तो पोजीशन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ओके, तो अगर आप पोजीशन से प्रॉब्लम हो रही है तो आप देख लेना डिजिट से पहले कितने डिजिट है, उतनी 1 के साथ 0 लगा के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप पोजीशन भी फाइंड आउट करोगे, जैसे ये वाली 6 वाली पोजीशन है 1 लाख, 1 लाख मीन्स 1 के साथ 5 0, तो 6 को 1 के साथ 5 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ 10⁻5। 3 से पहले कितने हैं डिजिट, 1 2 3 4, और 3 की पोजीशन क्या है 10,000, 10,000 मीन्स 10 1 के साथ 4 zeros, तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻4, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो 0 को हम प्लेस नहीं करेंगे, 2 आ गई, 2 की पोजीशन थी 100, 2 इंटू 10⁻2, 5 की पोजीशन 10 थी, 5 इंटू 10⁻1, 8 की पोजीशन 1 थी, 1 वी कैन राइट एज 10⁻0, बिकॉज हम इसको टेंस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो किसी भी टर्म की पावर 0 होगी तो 1, तो 1 लिखने के बजाय यहाँ मेंशन करेंगे 10⁻0। इसी तरह से 4 की पोजीशन है आपके 10 लाख, 10 लाख मतलब 1 के साथ 6 0, तो 4 इंटू 10⁻6। 5 की पोजीशन है लाख पोजीशन, 5 इंटू 10⁻5। अगर आपको पोजीशन में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप डिजिट काउंट कर लो, 4 से पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, उतनी 10 के पावर में लिख दो। 5 से पहले कितने डिजिट हैं, 5, 5 इंटू 10⁻5। 8 से पहले कितने डिजिट है, 4, 8 इंटू 10⁻4। 2 से पहले कितने डिजिट है, 3, 10⁻3। 3 से पहले 2 डिजिट 10⁻2। 6 से पहले कितने डिजिट है, 1, 6 इंटू 10⁻1, और 1 से पहले कितने डिजिट है, 0, 1 इंटू 10⁻0। कि जितने पर्टिकुलर नंबर से पहले डिजिट्स होंगे उतने डिजिट काउंट करके आपने 10⁻4 में लिख देना। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।